रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है 10 सम के लिए। लेट्स ड्रॉ लाइन। चलिए आप जरा लाइन ड्रॉ कर दो 10 सम की। द थ्री नॉन कनेक्टेड। देखो क्वेश्चन 10 रीड कर रहा हूँ। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2007। सो हमारी कंपनी का ईयर एंडेड 30 जून है 2007। टाटा लिमिटेड entered into the following transactions. Okay, so July 1 we have purchased 2,40,000 4% Z loan. 4% is the rate of interest. That interest is payable on 1st February and 1st August at 60.5 कम इंटरेस्ट। उसके बाद में अगस्त 1 में वी हैव परचेज 6,000 इक्विटी शेयर्स इन बाटा for 80,000. Bata made a bonus, 2 shares for every 3 shares. Tata sold the bonus. Then October 1 we have purchased 5,000 shares in ATA. ये था बाटा। Then we have sold 4% Z loan. Then March 1 we have received dividend. April 1 ATA made a right issue, 1 share for every 2 shares sold. Rights are sold. Then we have received dividend. Prepare relevant investment account. Why the word relevant? क्योंकि if you notice the three non-connected, एक जो green color है ना 4% Z loan government security है. That's a fixed interest security like a debenture government security. Then light blue color जो है वो investment in equity shares of Bata है and yellow color investment in equity shares of ATA. Each investment account is a different one क्योंकि उसके rules regulation अलग होते हैं। तो start करिए। चलिए हम पहले 4% Z लोन करते हैं। प्लीज लाइन ड्रॉ कर दो। व्हेन लाइन्स आर रेडी मुझे R4 रेडी टाइप करना तो मैं सम स्टार्ट कर देगा। लाइन्स रेडी हो गया तो R4 रेडी टाइप कर देना। लाइन रेडी हो गया तो मुझे R4 रेडी टाइप कर दो। एक भी R नहीं आया है अभी तक। वो 26 स्टूडेंट्स मेरे साथ में है। क्या बात कर रहे हैं? 26 इज अ बिग नंबर। ओके, तो एक काम करते हैं, हम पहले इधर टाइमलाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है? ईयर एंडिंग 30 जून है। सो ईयर बिगिनिंग जुलाई से होगा। बीच में इंटरेस्ट की डेट कब थी? आई थिंक सो 1st Feb। इंटरेस्ट डेट 1st Feb एंड 1st August। करेक्ट। 1st August को इंटरेस्ट है, 1st February को इंटरेस्ट है। अच्छा, ट्रांजेक्शन कब हो रहा है? July 1 वी हैव परचेस्ड, फर्स्ट डेट पर परचेस है। देन January 1 सोल्ड है। बस 2 ही ट्रांजेक्शन है। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। शुरू करें। सो परचेस के लिए 1st जुलाई जर्नल बताइए। वी आर परचेसिंग इन्वेस्टमेंट, याद करो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, because when we buy
investment we have to pass on interest to previous person. इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम बैंक मनी 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 लिखते हैं. And you know that depends on the type of quotation. That depends on the type of quotation. हमारा quotation क्या है? हमारा quotation है 60.5 कम इंटरेस्ट. The word कम इंटरेस्ट is all inclusive price. Is come interest price 60.5 means 60.5. And what is the face value of the investment we are purchasing? What is the face value of the investment we are purchasing? The face value of the investment we are purchasing is 2,40,000. 4% is the rate of interest and 60.5 is the price. So tell me how much it comes, all inclusive lump sum price. That's a 145,200. So that's a 145,200. Okay. लेकिन बुक कीपिंग के लिए you need a breakup of interest also. Interest is always last interest date to the date of transaction. मेरी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है 1 जुलाई, तो नेक्स्ट इंटरेस्ट अगस्त में, प्रीवियस इंटरेस्ट फरवरी में था. सो 1 फरवरी टू 1 जुलाई काउंट कर लो. 5 मंथ्स होता है. फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. So 4% face value, five months. Is that 4,000? चेक कर लो, चेक कर लो जरा. There is a 4,000. चलिए पोस्टिंग कर दो. इन्वेस्टमेंट में डेबिट, इंटरेस्ट में डेबिट, बैंक में पेमेंट. Of course we don't make bank account. So investment debit 140, ये हमारी वर्किंग नंबर 1 है. 141,200. Working number 1. First July. Journal entries, investment account debit to bank. You know this amount column itself is an investment account. All right, आगे वो टाइम लाइज इंटरेस्ट. Okay, so calculate the interest. Receive interest.
बैंक टू इंटरेस्ट। बोलिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, फेस वैल्यू 2,40,000, 6 months. %, 2,40,000 for 6 months. That's a bank to interest, 4,800. What is the date? 1st August. Okay. Go as per the date. After 1st August, 1st January sale. After 1st August interest date, next transaction 1st January sale. किधर है मैं? 1st January sale. Sold 4% Z loan at 61x interest. At 61x interest, 60,000 face value. January 1. 1st January sale. बोलिए। बैंक डेबिट, interest to investment. Actual receipt, X interest price plus interest. It's a 61. Face value 60,000. 60,000 face value. Interest 4%. Face value. How many months? August, September, October, November, December, 5 months. That's 1,000 rupees. Bank debit. Interest income. Bank debit, interest and investment. ठीक है? So take interest income credit side. Investment account. Face value is information column.
बाय बैंक 1 जुलाई। देन प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करिए। What is the sale price? इन्वेस्टमेंट का तो 36,600 है। What is the book value? टेक्निक क्या है? जस्ट बिफोर द सेल चेक करो मेरे पास कितने की इन्वेस्टमेंट है। चेक करो जस्ट बिफोर द सेल व्हाट इन्वेस्टमेंट यू हैव। लुक एट योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितनी इन्वेस्टमेंट है। जस्ट बिफोर द सेल चेक करो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है क्या? है, एक ही है। 2,40,000 फेस वैल्यू है, कॉस्ट है 141,200। दैट्स ऑल। There is no more receipt in the investment column, no more issue in the investment column. So we have an investment whose face value 240 है and whose book value 141,200 है। तो उसी में से प्रोपोर्शनेटली 60,000 का फेस वैल्यू इज सोल्ड, तो कितना हो गया? Sir, 35,300. Okay, so that becomes 35,300. So प्रॉफिट हुआ कि लॉस हो गया? We got more money. We got more money. The profit of 1,300. लॉस होता है तो P&L डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट होता है तो इन्वेस्टमेंट टू P&L। ठीक है। ईयर एंडिंग नहीं, अभी कभी नेक्स्ट डेट क्या है? नेक्स्ट डेट 1 फरवरी। इंटरेस्ट कितनी है? 240 में से 60 चला गया, 180।
3600. Bank to interest. Bank to interest. Bank to interest 3600. चले बस खत्म करो. ईयर एंडिंग. बैलेंस कैरी डाउन. देखो कितने की इन्वेस्टमेंट है. आउट ऑफ 240 we have 180. तो अक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा. क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट 1 फरवरी से 30 जून. कितना मंथ होता है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. 5 मंथ. चेक कर लो. फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. 5 मंथ. 4%. फेस वैल्यू 240. तो फेस वैल्यू तो 180 होगा ना, हमने सेल कर दिया 60,000 का. अच्छा, मैंने 240 लिखा है. यू आर वेरी राइट. 180 बिल्कुल सही है. ये 180 है ना हमारे पास एंडिंग का. या कितना हुआ आंसर? 180. 4%. 3000. बिल्कुल सही. 3000. क्लोज इंटरेस्ट कॉलम. So here is 12,400. कितना डिफरेंस है? Which will go to P&L. This will go to profit and loss account, being an income. Okay. Lastly, closing value at cost or market, whichever is lower. Valuation of closing investment. Cost or fair market value, which is less. कॉस्ट कैसे मिलती है? वही डेबिट माइनस क्रेडिट. कॉस्ट देखो, कॉस्ट कितनी है? 141 प्लस 1300, 142 500. और उसमें से ऑलरेडी डेबिट माइनस क्रेडिट 36,600 चला गया है. 105,900. कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट ना, चेक कर लो ना. 105,900 है क्या?
डेबिट माइनस क्रेडिट करके देखो। यस, और फेयर वैल्यू नहीं दिया है शायद, एंडिंग की मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, एंडिंग की मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, नॉट गिवन। ठीक है, सो 105,900। ऑलराइट, दिस सम इज ओवर। चलिए फटाफट दूसरा अकाउंट लाइन ड्रॉ करिए। अब इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ बाटा, सेम टाइप का लाइन होगा। चलिए फास्ट, इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटा देता हूं मैं। इज दिस डन? चलिए अभी बाकी फॉर्मेट तो सेम रहेगा, ओनली इंटरेस्ट कॉलम के बदले में डिविडेंड कॉलम बनेगी, बाकी सब सेम रहेगा हमारा फॉर्मेट। सो इन्वेस्टमेंट, चलिए इक्विटी शेयर्स, एक मिनट, ये गलत लिखा है, ये ऊपर ही मैंने रॉन्ग लिखा था अभी जो सम किया। हम खुद ही कौन थे, सॉरी मैंने ऊपर हेडिंग गलत लिखा था, हम टाटा थे। अभी जो सम किया उसमें चेंज कर दो, इन द बुक्स ऑफ टाटा है ना हम तो। अभी जो सम चेंज किया ना 4% जेड लोन में बुक्स ऑफ टाटा है, बी वेरी केयरफुल। अभी इक्विटी शेयर्स ऑफ बाटा, ठीक है। इंटरेस्ट कॉलम के बदले में क्या कॉलम लिखूंगा, डिविडेंड कॉलम। चलिए लाइन ड्रॉ करो। सब गायब। ठीक है, अच्छा ये जो शेयर्स होता है उसमें रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है,
neither the date of dividend fixed होता है, and because the rate of dividend fixed नहीं है, date of dividend fixed नहीं है, dividend मिलना ही fixed नहीं है, we call it a variable income securities, जबकि government security debenture were fixed income securities. Okay. स्टार्ट करें. आपको पता है शेष में 3 पॉइंट होता है, बोनस, राइट एंड डिविडेंड. तीनों हम देख लेंगे वापस एक बार. सो इवन इफ यू आर अटेंडिंग फर्स्ट टाइम दिस इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, आप फॉलो कर पाएंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. Are your lines over? Yes, sir. Okay. क्या है फेस वैल्यू, देख लेते हैं फेस वैल्यू क्या है. एनीवे, सो स्टार्ट करते हैं. ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर. We have purchased 6,000 shares of 5 each. 5 each face value. Face value 5 each. ये इंफॉर्मेशन है ऐसे ही. ओके, कितने में परचेस किया लेकिन 480,000. सो 1 अगस्त जर्नल एंट्रीज इन्वेस्टमेंट टू बैंक. क्या जर्नल है? इन्वेस्टमेंट टू बैंक. हमने 80,000 रुपीज में इन्वेस्टमेंट परचेस किया है, करेक्ट. कितनी फेस वैल्यू कितनी है? तो आंसर 6,000 इज नंबर एंड 5 ईच. 6,000 नंबर है, 5 ईच, तो फेस वैल्यू बताइए ना. 30,000. ओके. आगे फिर क्या हुआ? ये हो गया. अगस्त 18 बाटा लिमिटेड मेड बोनस 2 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड. बाद में उसमें से बेचेंगे, वो बाद में बेचेंगे, पहले बोनस ले तो लो. ओके. 18 अगस्त बोनस. रेशियो इज 2:3. 2 बोनस, 3 ओल्ड शेयर. तो टोटल कितना हो गया? हमारे पास ओल्ड कितने शेयर्स थे पता है? 6,000 शेयर्स थे ना, 5 ईच वाले. तो कितने का बोनस मिलेगा 2 आउट ऑफ 3 के हिसाब से? 4,000 bonus shares of 5, that is rupees 20,000 के बोनस. ये बोनस क्या होता है? कंपनी के एंगल से बोनस माने रिजर्व्स को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना. कंपनी के लिए बोनस माने ट्रांसफर रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल. लेकिन इन्वेस्टर के लिए बोनस माने गेट अ फ्री शेयर सर्टिफिकेट. एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट? किसी को आंसर देना है? हम इन्वेस्टर है, हमारे लिए बोनस मतलब गेट अ फ्री शेयर्स. क्या आपको किसी को आंसर बोलना है? बोनस शेयर मुझे मिला है, मैं नो कीपिंग एंट्री. या बिल्कुल सही. So you'll only record it at face value. करेक्ट, बिल्कुल, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग. सिंस बोनस शेयर्स received freely, no bookkeeping. No bookkeeping in amount column. That is investment account.
अमाउंट कॉलम को ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। इन शॉर्ट, नो बुक कीपिंग एंट्री, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। It is recorded in face value column. When I say no bookkeeping means no bookkeeping in investment account. Investment account किसको बोलते हैं? Amount column ही investment account। ओके, सो इंफॉर्मेशन के लिए बोलो कितना लिखूं मैं इधर? बोनस कितने का था? 4000 शेयर्स 5 each। August 18। चले, अब उसी में और एक ट्रांजेक्शन है। 2500 बोनस शेयर्स आर सोल्ड। मिला? 2500 बोनस शेयर्स आर सोल्ड। ठीक है, तो एंट्री कर दो, बैंक डेबिट टू सेल इन्वेस्टमेंट। $2,500 शेयर्स क्या प्राइस में बेचा? क्या प्राइस में बेचा है? 410 each, 10 rupees में सोल्ड। 2500 बोनस शेयर्स 410। बैंक टू इन्वेस्टमेंट। What is the face value? You know 2500 shares बेचा है ना, 5 rupees face value। 2500 shares we have sold 5 rupees face value. So total face value is 12,500. Total face value is 12,500. ओके, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस। Sir, profit would be 25,000. गलत जवाब। तुमने इनकम टैक्स वाला रूल अप्लाई किया है शायद, कि कॉस्ट 0 है। सेल प्राइस 25,000। सी हम लोग है ना वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करते हैं कंपल्सरीली। व्हाट इज वेटेड एवरेज मेथड? सब शेयर्स मिक्सअप हो जाता है। वंस आई गेट द बोनस शेयर, दे आर ऑल मिक्स्ड अप। दे आर ऑल मिक्स्ड अप। बात समझ में आया? ऐसा नहीं है कि या पर सर क्वेश्चन में तो क्लियरली बोला है ना कि हम लोग बोनस शेयर्स। आई एग्री, क्वेश्चन में बोला है हमने ये बेचा है। आई फुल्ली एग्री, बट फॉर बुककीपिंग पर्पस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 डज नॉट रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक मेथड। यू गॉट माय पॉइंट? अब स्पेसिफिक मेथड लिंक किया है कि बोनस शेयर आया वो चला गया, but accounting standard 13 recognizes weighted average automatically. So once you receive the bonus share, once you purchase any share, it loses identity and वो इसके अंदर मिक्सअप हो जाता है for bookkeeping purpose। ये बात समझ में आया? Is that point clear bookkeeping के लिए?
कि bookkeeping Yes, is sir. as per accounting standard 13, and that accounting standard 13 mixes up all the investment the moment it is purchased and received. So जैसे ही मुझे 18 अगस्त को बोनस शेयर आया है वो मिक्सअप हो गया अभी मेरे लिए. So मेरी टोटल फेस वैल्यू कितनी है 50,000 एंड टोटल कॉस्ट कितनी है 80,000. आपको यही मेथड फॉलो करना है. सो मेरी टोटल फेस वैल्यू 50,000. आई एब्सोल्युटली एग्री जो आप बोल रहे हैं कि मुझे दिख रहा है कि बोनस शेयर्स आर सोल्ड. फेस वैल्यू 50, बुक वैल्यू 80. दैट्स फॉर बुक कीपिंग पर्पस, फाइंडिंग प्रॉफिट लॉस. और उसी में से सोल्ड फेस वैल्यू कितनी थी 12,500. सो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट बताइए. इनकम टैक्स में रूल्स अलग है प्रॉफिट लॉस फाइंड करने के लिए. कैपिटल गेन चैप्टर में आएगा, नेक्स्ट टर्म में पढ़ाई करेंगे आप. Sir, 20,000. चलिए $5,000. ठीक है. The date was 18. उससे नेक्स्ट अगस्त 18 के बाद बताइए नेक्स्ट डेट कब है. Received 18% dividend in Bata for the year ended 30th June. Year ended 30th June मतलब कौन सा 30th June 2006 माने कौन सा जल्दी बताओ. लास्ट ईयर. अभी तो हमारा 7 एंडिंग चल रहा है ना, जून 7. सुनना, पहला डिविडेंड की बातें करते हैं. पूरी प्रोसीजर एक बार वापस समझा देता हूँ डिटेल्ड में. प्लीज अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. आपको डिविडेंड सही तरीके से समझना जरूरी है. स्टॉप राइटिंग. मैं भी जो बातें कर रहा हूँ जनरल बातें कर रहा हूँ. एकदम जनरल बात बोल रहा हूँ मैं. सपोज कोई कंपनी है, अभी रियल लाइफ की बात करूँ तो ऐसे बात कर रहा हूँ. 1 अप्रैल, अभी कौन सा ईयर चल रहा है रियल लाइफ में, अप्रैल 21 टू मार्च 22 चल रहा है. करेक्ट. रियल लाइफ में हम इधर किधर वी आर स्टैंडिंग समवेयर हियर. 8 जनवरी 22 चल रहा है. You know, almost 9 months are already over. Almost 9 months over. ये प्रॉफिट फॉर 9 month वेरी गुड. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है आज. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वुड लाइक टू गिव सम डिविडेंड टू द शेयर होल्डर. So today they will call board of directors meeting. एंड जो डिविडेंड देंगे उसका नाम क्या होगा, इंटरिम डिविडेंड. किसके पास पावर है, पावर टू डिक्लेयर एंड पे. बोलिए. Board of इंटरिम डिविडेंड का directors. पावर टू डिक्लेयर एंड पे किसके पास है, Board of directors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. करेक्ट. ये डिविडेंड का नाम है इंटरिम डिविडेंड. वैसे एक्चुअल टेक्निकल मीनिंग ऑफ इंटरिम डिविडेंड है एनी डिविडेंड व्हाटसोएवर बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग इज ए इंटरिम. एनी डिविडेंड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग इज ए इंटरिम. दैट इज एक्चुअल मीनिंग. लेकिन हमारे लिए अकाउंटिंग मीनिंग क्या है पता है, एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द करंट ईयर
out of current year's profit, even though the year is not over, is interim dividend. Power to declare and pay interim dividend is with board of director. Is this point clear? Over. अब पूरा ईयर जब खत्म हो जाएगा ना मार्च, तब समवेयर इन अप्रैल फाइनल अकाउंट रेडी हो जाएगा. फाइनल अकाउंट रात को 12 बजे 31 मार्च को थोड़ी रेडी होता है, अप्रैल या तो मई में रेडी होता है. फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक मीटिंग बुलाएंगे एंड वो फाइनल डिविडेंड प्रपोज करेंगे, रेकमेंड करेंगे. दैट्स इट. नो पावर टू पे. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फाइनल डिविडेंड रिलेटेड क्या पावर है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फाइनल डिविडेंड रिलेटेड क्या पावर है? ओनली प्रपोज करने का, रेकमेंड करने का. कब करते हैं? ईयर कंप्लीट होने के बाद, फाइनल अकाउंट रेडी होने के बाद. फिर क्या होता है? फिर आता है सितंबर, अगस्त या तो सितंबर. उस दिन एनुअल जनरल मीटिंग होता है. वो एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है? शेयर होल्डर्स approve final dividend which was recommended by the board and then paid. So technically power to approve and recommend and pay करने का किसके पास है? Power to approve and pay. Power to approve and pay किसके पास है? Shareholders. Shareholders in the AGM. Shareholders in the AGM. ठीक है, से 30th सितंबर को. ओवर. ये कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस सीख गया कि कौन प्रपोज करता है और किसको पे करने का पावर है. अब मेरी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, मारवाड़ी दिमाग वाला पॉइंट. हु विल रिसीव फाइनल डिविडेंड? फाइनल डिविडेंड का मनी 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 कौन से वाले शेयर होल्डर के पास होगा? कौन सा शेयर होल्डर के पास फाइनल डिविडेंड मिलेगा? रुकिए, लेट मी हेल्प यू आउट फर्स्ट. मेरा क्वेश्चन पूरा करने दो. सपोज देयर इज वन मिस्टर ए. एक मिस्टर ए है, उसके पास मार्च जो लास्ट डेट है ना, शेयर्स थे. उसने क्या किया? ही वांटेड मनी. तो उसने मिस्टर बी को अगस्त में सेल कर दिया. अगस्त में. और मिस्टर बी ने मिस्टर सी को सेल कर दिया, वो भी अगस्त में. सो लास्ट डेट पर मिस्टर सी के पास शेयर्स है. आई रिपीट, जब ईयर खत्म हुआ तब मिस्टर ए के पास शेयर्स थे. ही वांटेड मनी, तो अगस्त में बी को बेच दिया. 1 वीक में बी को भी पैसा चाहिए तो उसको सी ने बेच दिया. सो 30 सितंबर ऑन द डेट ऑफ एजीएम सी के पास है. अब मेरी बात सुनना, जब डायरेक्टर ये फाइनल डिविडेंड प्रपोज करेंगे ना, 10%, 20%, जो भी है परसेंटेज, याद रखना वो मार्च की जो भी कैपिटल है ना उसके पर कैलकुलेशन करेंगे. कॉमन सेंस चलाना. डायरेक्टर फाइनल डिविडेंड 10, 20, 30% जो भी देंगे वो मार्च की शेयर कैपिटल के पर प्रपोज करेंगे. वो कॉमन सेंस भूलना मत. उस दिन मिस्टर ए ओनर था, अगस्त में उसको पैसा चाहिए था, बी को दे दिया, फिर सी को बेच दिया, एंड लास्ट डेट पर सी को है. अब बताओ, चेक में टाइप करो डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड का चेक जो शेयर होल्डर 30 सितंबर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या वो ए को मिलेगा, बी को मिलेगा और सी को मिलेगा? वो बताओ. चेक में टाइप करो. मनी मनी मनी. मारवाड़ी दिमाग पूछ रहा हूं मैं, बुक कीपिंग पूछ ही नहीं रखा हूं. एक बात बोलूं, ऑल 26 स्टूडेंट सही पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं. उन्होंने सही जवाब दिया है, एकदम सही जवाब दिया है. स्टार्टिंग फ्रॉम दीपाली, राघव, कुशाग्र एंड एवरीबडी, ध्रुव एंड सब लोग ने, कि मिस्टर सी को मिलेगा, ये राइट आंसर है. रूल क्या है? जो भी जिस दिन डिविडेंड अप्रूव होता है ना, जिस दिन डिविडेंड अप्रूव होता है, दैट इज 30 सितंबर एजीएम के डेट, उस दिन जो मालिक होगा उससे डिविडेंड मिलेगा. बहुत अच्छी बात है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ए का बैड लक. पहले ए 31 मार्च को शेयर होल्डर था, बैड लक. बी का भी बैड लक. गुड लक किसका है? सी का. On the date of declaration of dividend of AGM, because C was the owner, yes, he will get the dividend. Very good, बहुत अच्छा. With this background,
अब ये बैकग्राउंड के साथ हम बात करते हैं, ठीक है। We have received 18% dividend for the year ended 30th June, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं हमको डिविडेंड मिला कैसे, वैसे मिला कब है, मार्च 1 को, ठीक है। अब हमको डिविडेंड सही तरीके से कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा ना। मार्च 1 फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम बाटा for year ending March 6। सो मैं बाटा लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाऊं ना, हमारी नहीं है, बाटा 30 जून की, अरे फॉर द ईयर एंडेड 30 जून था ये, 30 जून की बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो उस वक्त जो भी शेयर कैपिटल होगी उसके पर फाइनल डिविडेंड वाज प्रपोज। आप भी इतना लिखना है तो लिख सकते हैं। 1 मार्च हमें फाइनल डिविडेंड मिला है, ओके। 1 मार्च को फाइनल डिविडेंड मिला है, बाटा लिमिटेड से मिला है। वो कंपनी ने ईयर एंडिंग 30 जून के ऊपर डिविडेंड दिया है, वो वाली कैपिटल पर। सो बाटा की 30 जून की जो भी कैपिटल होगा, बाटा की 30 जून की जो भी कैपिटल होगा उसके ऊपर फाइनल डिविडेंड प्रपोज किया गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन है मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा, तो हम लोग अपना शेयर्स देखते हैं, है कितना अपने पास शेयर्स। देखो 2 शेयर्स है, एक 18 अगस्त को बोनस शेयर्स था और 1 अगस्त को कुछ बाजार से शेयर परचेस किया है। ध्यान से सुनना, मैं रिवर्स ऑर्डर में जाता हूं, मैं रिवर्स ऑर्डर, कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड, कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड, 3 कॉलम कर देता हूं, ओके। डेट था 18 अगस्त, बोनस शेयर, डिविडेंड रिसीव्ड कितना होगा, एंड ट्रीटमेंट क्या है, बुक कीपिंग ट्रीटमेंट। 18 अगस्त बोनस शेयर्स, अब सोच के आंसर दो। ये 18 अगस्त वाले जो बोनस शेयर्स है, 18 अगस्त वाले जो बोनस शेयर्स है, क्या कंपनी की बैलेंस शीट में, क्या कंपनी की बैलेंस शीट में वो 30 जून थे क्या, वो वाली कंपनी की बैलेंस शीट में 30 जून थे, नहीं थे। सपोज मैं वो वाली कंपनी की जैसा टाइमलाइन बनाता हूं ना, वो वाली कंपनी हमारी नहीं, ये बाटा कंपनी, तो ये ईयर एंडिंग 30 जून है, हाँ। फिर बोनस कैपिटल का जन्म अभी हुआ है 18 अगस्त, और हम लोग अभी कब थे, हम लोग आज की डेट क्या है, 1 मार्च, डिविडेंड रिसीव्ड, ये फाइनल डिविडेंड इसी के, ये ईयर एंडिंग के लिए, ये फाइनल डिविडेंड ये वाला ईयर एंडिंग के लिए है। तो बताओ ये अगस्त की जो बोनस कैपिटल है, क्या उसके पर 30 जून वाला फाइनल डिविडेंड कैलकुलेट किया गया होगा, जल्दी से बोलो। जो कैपिटल का जन्म ही 18 अगस्त को हुआ है, क्या उसके पर 30 जून का फाइनल डिविडेंड कैलकुलेट किया गया होगा? नो सर। नो, क्यों नो? Since on 30th June, bonus share capital, हेलो, हाँ सर, बोलिए सर। लेक्चर ले रहा हूँ मैं, अभी लेक्चर ले रहा हूँ मैं, हाँ हाँ। एक काम करिए ना, आज उनको उधर ही बुला के बोलो सबके सामने, मैं तो
प्रवीण पवार का कभी कभी तक का पेंडिंग है सर? कर लेता हूँ सर, मैं बात करता हूँ। अरे हम वो फुल टाइम फुल टाइम कॉलेज में रहता है, उनको कुछ काम भी नहीं है, सब काम तो मैं करता हूँ, फिर भी वो ये करते हैं। हाँ करता हूँ। नहीं उनको बोल सर, सर सुनिए, उनको भी बोल दो और बोलो आपका रिपोर्ट प्रिंसिपल को गया, ऐसा बोलो ना सर एक बार। हाँ मैं भी बोलता हूँ सर। हाँ मैं 11:30 को करता हूँ, है ना सर? मैं 11:30 को उनको बात करता हूँ, मेरा लेक्चर खत्म होता है ना फिर, है ना सर? लेकिन आप नहीं, अरे लेकिन वो सर को तो सर का हमेशा का किसी का नहीं, ऐसा नहीं, आपका ड्यूटी थोड़ी है, आपकी ड्यूटी थोड़ी है यार। हाँ नहीं मैं करता हूँ, हाँ सर मैं करता हूँ सर। नहीं अरे उनको भी पता है कि तो हम सर, आपको पता है मैं एवरीडे मैसेज डालता हूँ कि रोज रोज का अपलोड करो एवरीडे। हाँ अरे सर आपको मालूम है मैं कोविड पर हूँ ना, तो भी मैं 24 घंटा काम करता हूँ, खाली एक ही दिन मैं सोमवार को काम नहीं किया। हाँ हाँ मालूम है ना मैंने सर। हाँ देखा मैं, मेरे को मालूम है ना सर। 4 तारीख का एक है ना हमारा मेल में है आपके, बट वो लेक्चर कैंसिल हो गया, रिया को भेज दिया सर की। क्या है अपना एक डिले होता है ना, मैं वो है ना मैंने 4 जनवरी का 11 टोटल, 4 जनवरी कल मैंने वापस भेजा रिया को। हाँ अरे प्रिंसिपल सर को मैंने 3 बार भेजा, उन्होंने अप्रूव अभी किया, उनके ध्यान से निकल गया। मैं हो गया भेज दिया। ओके भेज देता हूँ। मैं ग्रीष्मा को भी भेजा, रिया को भी भेजा है, मैं आपको भी भेज देता हूँ। हाँ सर, ओ मैं भेज देता हूँ सर। हाँ भेज देता हूँ। हाँ एक करेक्शन है, करेक्शन मतलब एडजस्टमेंट, बाकी सब डिलीट ही है, मैं भेज देता हूँ अभी, समझ जाएंगे आप। अभी भेज देता हूँ। चलिए आगे करिए कैलकुलेशन। चलिए सो बोनस शेयर पर तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब क्या बचा, हमने एक शेयर 1 अगस्त को परचेस किया है, कितने का फेस वैल्यू है वो? 30,000। 1 अगस्त, सुनना, हमने कुछ शेयर परचेस किए है 1 अगस्त, हमने कुछ शेयर परचेस किए है 1 अगस्त, परचेस किए। अरे हमने, जिसने, वो आदमी ने बेचा उससे परचेस किया। दैट मीन्स ये वाले शेयर 30 जून वो बाटा कंपनी की बैलेंस शीट में तो था कि नहीं था, वो बताओ। मैंने मार्केट से परचेस किए, लेकिन बाटा कंपनी के लिए क्या वो बैलेंस शीट में था या नहीं था? आई रिपीट माय क्वेश्चन। बाटा कंपनी के लिए, बाटा कंपनी के लिए क्या वो 30 जून की बैलेंस शीट में था या नहीं? मेरे पास नहीं था, मैं मानता हूं 30 जून को, बिकॉज आई बॉट इट ऑन 1 मार्च, अरे 1 अगस्त, और बाद में अभी तक है मेरे पास। तो ये वाले शेयर पर डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बताओ। यस सर मिलेगा। मिलेगा। कितना % डिविडेंड है? डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं, याद रखना। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं, डिविडेंड ऑलवेज फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं। डिविडेंड मिलेगा। ओके मेरी बात सुनना, लेकिन मैंने शेयर 1 अगस्त को परचेस किया। ओके और डिविडेंड ये कौन सा पीरियड का है? जल्दी बोलो माइक में, 1-2 जन, डिविडेंड कौन सा पीरियड का है? 30 जून का। मुझे क्यों मिला? क्योंकि अपना रूल तो बहुत सिंपल है, जो भी एजीएम के दिन मालिक होता है 1 मार्च को डिविडेंड डिक्लेयर किया लगता है एजीएम में, तो जो भी एजीएम के दिन मालिक होता है उसे डिविडेंड मिलता है, तो मुझे मिला। लेकिन 30 जून जो ईयर एंडिंग था ना, तब मैं मालिक नहीं था 30 जून को।
दैट मीन्स ये जो डिविडेंड का पीरियड है ना, वो क्या नाम बोल सकते हैं डिविडेंड का पीरियड को? ये डिविडेंड का पीरियड को क्या बोल सकते हैं? ये डिविडेंड का पीरियड को क्या बोल सकते हैं? जल्दी बोलो ना। प्री पीरियड डिविडेंड मतलब क्या? हम जब शेयर परचेस करते हैं, हमने जो शेयर परचेस किया उसके पहले का पीरियड का डिविडेंड होता है ना, उसे प्री पीरियड डिविडेंड। वो हमारे लिए कैपिटल रिसीप्ट है। ये कहाँ क्रेडिट होगा पता है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, डिविडेंड कॉलम में, पीएनएल में नहीं। क्यों? एक बात बोलता हूं, देखो दुनिया में देयर इज नो फ्री लंच। जो आदमी ने हमें 1 अगस्त को शेयर्स बेचा है ना, पता है वो आदमी ने हमारे से कुछ ज्यादा पैसा लिया होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि परचेसर को डिविडेंड भी तो मिलने वाला है। आई रिपीट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मैंने बोला देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। जो आदमी के पास से हम लोग ने 1 अगस्त में शेयर परचेस किया होगा ना, उसने भाव बढ़ा के ही शेयर्स दिए होंगे। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है डिविडेंड भी हमें ही मिलने वाला है। दैट मीन्स हमने इन्वेस्टमेंट का जो प्राइस दिया है ना, वो ज्यादा प्राइस होता है, तो वो प्राइस में से जो डिविडेंड मिलता है वो भी उधर ही आना चाहिए। सो दैट इज वाई प्री डिविडेंड इज रिकॉर्डेड इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज ए कैपिटल रिसीट। आई रिपीट, क्या बोला? प्री पीरियड डिविडेंड इज रिकॉर्डेड इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज ए कैपिटल रिसीट। व्हाट इज प्री पीरियड डिविडेंड? हमारा शेयर परचेस करने के पहले के पीरियड का डिविडेंड। सिंस इट इज प्री पीरियड डिविडेंड, since it is pre-period dividend, it is credited in the investment account. Since it is pre-period dividend, it is credited in the investment account. कितने लोगों को समझ में आ गया? एस वर्ड टाइप करो। या बोलिए। तो अगर पोस्ट पीरियड होता तो डिविडेंड अकाउंट में होता। यस, ओके। अभी आते हैं ना, जैसे मैंने 1 अगस्त को शेयर परचेस किया, बाद में भी कंपनी तो भी चलने वाली है ना, वो वाली तो बाद में भी वो लोग प्रॉफिट करते रहेंगे, डिविडेंड देते रहेंगे, प्रॉफिट करते रहेंगे, डिविडेंड देते रहेंगे। वो सब पोस्ट पीरियड डिविडेंड बोलते हैं। वो पीएनएल में जाएगा। पीएनएल मतलब डिविडेंड कॉलम में जाएगा, डिविडेंड से पीएनएल में जाएगा। सो प्री एंड पोस्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वर्ड पहला वो बताइए। प्री एंड पोस्ट इज कट ऑफ पीरियड। डेट क्या होता है? डेट ऑफ आवर परचेस ऑफ शेयर। वापस बताइए, प्री एंड पोस्ट का कट ऑफ वर्ड क्या है? प्री एंड पोस्ट का कट ऑफ वर्ड, आई मीन कौन सा डेट के पहले का पीरियड को प्री पीरियड डिविडेंड बोलेगा, एंड कौन सा डेट के बाद का डिविडेंड को मैं पोस्ट पीरियड डिविडेंड बोलेगा। सो प्री एंड पोस्ट इज बेस्ड ऑन व्हाट? वी परचेसिंग द शेयर। हमारी डेट ऑफ परचेस ऑफ शेयर है। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. जितने लोग को समझ में आ गया है, एस वर्ड टाइप करो। एस, एस माने समझा? आया नहीं है? आया। सो प्री पीरियड डिविडेंड मीन्स period of dividend is before our purchase of share, and post period dividend means period of dividend is after we purchase share of that company. Okay, तो ये 5400 रुपीस मिला है, कहाँ लिखूं मैं? इन्वेस्टमेंट अकाउंट कॉलम में, क्योंकि प्री पीरियड डिविडेंड है। सो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा बनता है कि प्री पीरियड डिविडेंड इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट। 4 ऑप्शन देंगे। डिविडेंड अकाउंट मतलब पीएनएल अकाउंट, डिविडेंड दैट इज पीएनएल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कोई दूसरा 2-3 अतरंगी नाम भी दे देंगे। तब आपको याद रखना है कि प्री पीरियड डिविडेंड इज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इट्स ए कैपिटल रिसीट। हमने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, वो आदमी ने हमारे से 80,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट परचेस किया, करवाया था ना महंगे भाव में, तो एटलीस्ट हम लोग हैप्पी है कि उसमें से 5400 की वसूली भी हो गई ना, रिकवरी भी हो गई। दैट वे द मीनिंग इज दैट। चलिए आगे चलो। हेलो, हाँ सर बोलिए। अभी हो गया बराबर में। हाँ, आराम करूँ लेकिन करता हूँ। हाँ मैं, हाँ है ना, 11:30 बजे के बाद में कॉल करता हूँ लेक्चर के बाद। हाँ। चलिए
अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, वो वाले शेयर्स पर नहीं है, सो लेट्स क्लोज। चलिए, डिविडेंड तो है ही नहीं। अच्छा, इसमें इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट विच एवर इज लेवल, मार्केट प्राइस तो दिया नहीं है तो कॉस्ट पर ही ले लो। चेक कर लो ये। कॉस्ट कितनी है? 54,600। ठीक है, कॉस्ट 54,600, फेयर वैल्यू नॉट गिवन, विच एवर इज लोअर। चलो नेक्स्ट सम की लाइन ड्रॉ करो, और एक समय ना ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट सम की लाइन ड्रॉ करो, फटाफट लाइन ड्रॉ कर दो एक।
चले लाइन रेडी हो गया? इन्वेस्ट Yes, sir. कंपनी है आटा लिमिटेड. If your lines are over, let me know. We can start. Shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलिए अभी येलो कलर. Purchase 5,000 shares of 5 each face value है at 750. तो जर्नल एंट्री क्या है? इन्वेस्टमेंट टू बैंक. 5,000 शेयर्स है, 5 रुपीज फेस वैल्यू है, तो 25,000 फेस वैल्यू है एंड 750 इज परचेस प्राइस है. सो 1 October. $5,000 shares, 5 rupees face value. And 37,400. चले ये October 1 था, फिर January 1 नहीं, अभी इधर है April 1. ओके, April 1 में क्या है? आटा मेड a right issue of 1 share for every 2 shares. So 1 right for 2 share. पता है ना हमारे पास कितने शेयर्स थे? अभी अभी हमने परचेस किए थे, 5,000 शेयर परचेस किए थे ना. सो 2,400 राइट्स मिल जाएगा. क्या किया हमने? दिस राइट्स आर सोल्ड. पता है बुक कीपिंग एंट्री किसी को याद है? जब राइट परचेस करते हैं ना तो शेयर परचेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट टू बैंक. बाजार में बेचते हैं ना राइट्स, राइट्स ना शेयर नहीं, कूपन, तो बैंक टू P&L. सो दैट इज April 1. चलो करिए 1 April 1 कैलकुलेशन ऑफ राइट्स करिए. 1 April राइट्स रिसीव 1 right for 2 shares held. तो मेरे पास 5,000 शेयर्स है, I'll get 2 rights. यहाँ तो राइट शेयर है ना, फ्री शेयर्स नहीं होता है. शेयर्स गिवन बाय कंपनी एट सम कंसेशनल प्राइस. शेयर मार्केट में जो प्राइस चलता है उससे थोड़ी कम प्राइस होता है. हमें एज ए इन्वेस्टर जब राइट मिलते हैं ना तब हम क्या करते हैं? राइट सब्सक्राइब एंड शेयर परचेस्ड. जो हमारे ये वाले प्रॉब्लम में नहीं है. ऐसा है तो मैं इन्वेस्टमेंट टू बैंक करता हूँ. और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? वो राइट कूपन जो आता है ना फॉर्म, राइट कूपन को ही बेच डालते हैं, जो हमने हमारे प्रॉब्लम में किया है. ऐसा है तो हम क्या करते हैं? बैंक टू P&L. हमने राइट्स बेच दिया, 2,500 राइट्स 2 रुपीज 50 पैसे में बेच दिया. अच्छा है ना. तो जर्नल एंट्री क्या है? बैंक टू P&L. इट विल नॉट कम अबव, इट विल नॉट come
in above account. चलिए चलिए आगे। चलिए कितने लोग को समझ में आ गया ये राइट्स वाला? तो ऑफ ओके टाइप कर दो। राइट समझ में आ गया तो ऑफ ओके टाइप कर दो। राइट समझ में आ गया तो ऑफ ओके टाइप करो। राइट समझ में आ गया तो ऑफ ओके। वाओ 26 स्टूडेंट अच्छा पढ़ रहे हैं यार। अरे आप लोग ने फिर कल वो MBA वाला लेक्चर देखा किसी ने आप में से? कल हमने एक लेक्चर रखा था, मैंने वैसे रिकॉर्डिंग भी आपके पास दिया है, आपके बैच में रिकॉर्डिंग भी मैंने उसका शेयर किया है। क्या आप लोग में से किसी ने वो लेक्चर अटेंड किया था? थोड़े लोग तो मुझे दिख रहे हैं, मीर था, अनन्या थी, 2 जन तो मुझे आई रिमेम्बर इट। आई थिंक सो श्रिया भी थी कल, शी वाज आल्सो देयर। आप लोग थे या नहीं थे कल के लेक्चर में MBA में? अच्छा था या मीर यू वर देयर? आई नो। Yes, sir, I was also there. आई थिंक सो द बॉय वाज वेरी सिंपलटन बॉय, लड़का था ना, वो मैथ्स में फेल हो गया था 2 बार, फिर भी वो उसने जो कैट में 98.48% लाया है। उसका कहना है मैथ्स भी इसकी ज़्यादा चिंता नहीं करो। उसका ये भी कहना था कि कॉमर्स वाले को फ़ायदा है क्योंकि IIM इंस्टीट्यूट वगैरह होती है ना, दे लुक फॉर डाइवर्सिटी। इंजीनियर्स तो उनके पास होलसेल में आते हैं, सो कॉमर्स बीइंग ए माइनॉरिटी कम परसेंटेज में मिल जाता है उनको, सो दैट्स एडवांटेज। देन फ्रेशर के लिए भी देयर इज अपॉर्चुनिटी। तो आप रिकॉर्डेड वीडियो टाइम मिलने पर जरूर से देखिए, जो लोग भी MBA करना चाहते हैं, ठीक है? मैंने भेज दिया वो आपके ग्रुप पर वो वीडियो भी। चलिए अभी कहाँ है हम लोग? ये हो गया June 1 रिसीव्ड इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब आज झट मंगनी पट ब्या, मैं तो बोलता हूँ बिना मंगनी ब्या, मतलब कि जस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग बुला वो डिविडेंड दे दो। तो बोलिए कितना? 10% डिविडेंड है ना? कितना डिविडेंड है इंटरिम डिविडेंड हमारे प्रॉब्लम में? 10%। सो आज जितना शेयर है उसके पर ही मिलेगा ना, आज ही मिलेगा ये तो मेरे पास अभी कितना डिविडेंड है इंटरिम डिविडेंड के लिए? इंटरिम डिविडेंड 10% फेस वैल्यू, बोलिए ये डिविडेंड पोस्ट क्यों हुआ? पोस्ट पीरियड, मैं खुद बोलता हूं ये पोस्ट पीरियड क्यों हुआ? अरे भाई डिविडेंड आज ही दिया है, आज के ही प्रॉफिट से है, पहले के प्रॉफिट में से नहीं है। शेयर तो हमने पहले ही परचेस कर लिया, लेकिन डिविडेंड का डेट आज है, डिविडेंड का डेट आज की है, बिकॉज इट इज सो इंटरिम डिविडेंड पोस्ट पीरियड हो जाएगा हमारा, ठीक है? डेट क्या थी वैसे? डेट दिया है क्या? June 1। कितने लोग को समझ में आया ये पोस्ट पीरियड क्यों है? पोस्ट पीरियड मतलब मेरे शेयर परचेस करने के बाद के पीरियड का डिविडेंड, तभी तो मुझे मिला है ना, वरना मुझे मिलता ही क्यों था ये वाला डिविडेंड? तो सो 18%, सॉरी 10% ऑफ 25,000, ये डिविडेंड ऑटोमेटिकली बाद में P&L में जाएगा। कितने लोग को पोस्ट पीरियड डिविडेंड समझ में आ गया है? तो P वर्ड टाइप करो, P लेटर टाइप करो,
पी मतलब पोस्ट आएगा, ये वाला डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, राइट, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। क्योंकि ये डिविडेंड आज के डेट का है, शेयर तो पहले ही परचेस कर लिया था, डिविडेंड पीरियड इज पोस्ट माय परचेस ऑफ शेयर। बस हो गया, नो अदर ट्रांजेक्शन, क्लोज कर दो। ये वाला सम खत्म हो गया, इसके साथ हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही खत्म हो गया। सब कुछ मैंने रिपीट किया, सेकंड टाइम सीखा हमने सब कुछ, बोनस शेयर्स, डिविडेंड, राइट शेयर, होगा। चले आगे, अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करूं। क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट विच इज लोअर, बट फेयर मार्केट वैल्यू दिया नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ अभी।